Cameras need to be on. Cameras need to be on, otherwise I will have to move you out. So we start with revision of dissolution of firm. Why dissolution of firm? One of the easy chapters, and this is one chapter जो आप एग्जाम में करोगे. You will have to, if you know your revised format, your paper pattern revised. Anyways, dissolution of firm means closing down of partnership business. The partnership business is being shut down, and whenever any business shuts down, any business, कोई भी business अगर बंद होता है, तो उस बिजनेस के सारे एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है. कॉमन सेंस है. यू हैव अ बिजनेस, देयर इज नो ऑप्शन टू स्टार्ट वीडियो लेटर. यू स्टार्ट नाउ और गेट लॉस्ट. Okay, dissolution of firm. First of all, firm means partnership business. What does firm mean? Firm means partnership business. Dissolution means winding up of the partnership business. Dissolution of firm means that the business is being wound up, business is being shut down, it is being closed. And whenever any business is closed, not just partnership, any business is closed, the common steps are: first, all the assets are to be disposed of. Then all liabilities need to be settled. Obviously, all outside liabilities need to be settled first. And then whatever remains is for the owners. कॉमन सेंस है. कोई भी बिजनेस बंद होगा, बिजनेस के सारे एसेट्स को ठिकाने लगाना है, जो पैसा आएगा लायबिलिटीज को सेटल करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर जो पैसा बचा बिलोंग्स टू ओनर्स. Similarly, in a partnership firm also, whenever the partnership business is shut down, is closed down forever, all the assets will be disposed of. Okay, all the assets will be disposed of. All the liabilities will be settled, and thereafter whatever money remains, partners will distribute among themselves. बरोबर है. दिस इज अ कॉमन थिंग. कोई भी बिजनेस बंद होता है, एसेट सेटल होता है. जैसे ये पार्टनरशिप बिजनेस है जो बंद हो रहा है, तो पार्टनरशिप के जितने भी प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, अब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो वो एसेट्स डिस्पोज ऑफ करो. फिर बिजनेस की जो लायबिलिटीज है उसको सेटल करो, एंड उसके बाद जो भी पैसा बचेगा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, एंड देन मैटर गेट्स ओवर. टाटा, बाय बाय, सी यू, मिस मी. बराबर कि नहीं? द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर. Now, how are the assets disposed of? You have been given all these things in writing. पूरा थियरी लिखवाया है. डिस्पोजल ऑफ एसेट्स. एसेट्स को तीन तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं. एसेट्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन
3 ways. Assets may be sold. Assets may be sold. रास्ता नंबर 2, asset may be taken over by partner. Or third option, asset may be given to someone to pay off a liability. ठीक है, लायबिलिटी पे करने के लिए हमने उसको हमारा पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी पे किया, एसेट दे दिया, ये तू रख ले, चल चला जा। कोई आया पैसा मांगने, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, एक काम कर, ये मशीनरी है ना, ये तू रख ले, तेरे काम आएगी। तो एसेट दे दिया टू सेटल अ लायबिलिटी, एसेट गिवन टू सेटल अ liability. So there are 3 ways in which a asset can be disposed of. Asset may be sold, asset may be taken over by some partner, or asset may be given to settle a liability. एसेट 3 में से कोई एक तरीके से डिस्पोज हो गया। अब हमको लायबिलिटी सेटल करनी है। कोई भी बिजनेस बंद हो रहा है तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज इंपॉर्टेंट। नाउ liabilities can be settled again in 3 ways. Liabilities again can be settled in 3 ways. And one way I have already discussed. One way of settling the liability is this: by giving that some asset. Liability settle कर दिया asset देके, या तो you settle the liability by paying it, तो liability is paid, or liability is assumed by a partner. कोई पार्टनर अपने सर पे ले रहा है लायबिलिटी कि ये मैं देख लूंगा, मैं उसको पे कर दूंगा, आई विल हैंडल इट। कोई पार्टनर अपने सर पे ले रहा है, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। सो whenever a business gets shut down, all the assets need to be disposed of. ठीक है, all the liabilities need to be settled. Assets can be disposed of in 3 ways. Either you can sell the asset, or some partner is taking over the asset, or that asset is given to someone to settle that liability. Is that okay? 3 तरीका है। फिर लायबिलिटी को सेटल करना है, इट कैन बी डन इन 3 ways. यू आइदर पे द लायबिलिटी, और सम पार्टनर से इसकी चलो ये लायबिलिटी मैं अपने सर पे ले लेता हूं, or that asset is given and settled, liability is settled. There are 3 ways. Some people think this is a joke, और बीच बीच में वो कैमरा बंद कर रहे हैं, मैं उनको फेंक रहा हूं बाहर। I told you I come to know when you are switching off your camera. ठीक है, after that accounts are settled between the partners. Now what are we given in the question? You have been given 2 things. One is the balance sheet on the date of
डिसोल्यूशन, जिस दिन बिजनेस बंद करने का है, जिस दिन से उस दिन का बैलेंस शीट. एंड देन यू आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट how the assets are settled, यानी disposed of, how the liabilities are settled, ठीक है. देन थर्ड थिंग, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर हुआ तो उसके बारे में बताएंगे. एंड फाइनली पार्टनर्स ने आपस में कैसे सेटल किया, कभी कभी वो भी बताते हैं. So you have been given a balance sheet on the date on which the business wants to shut down, and then you are been given the information about how the assets were disposed of, how the liabilities were settled, और ये सब में खर्चा हुआ तो dissolution expense and settlement between the partners, all said and done. Now solution, how to solve the question. सबसे पहले आपको तीन अकाउंट बनाने हैं, या 4 अकाउंट बनाने हैं, या 5 अकाउंट बनाने हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन सबसे पहला स्टेप, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ एनी, partners loan account if any, cash and bank account. Now 3 accounts for sure you are making, realization, capital and cash bank, बराबर है. But the remaining 2 accounts only if you see them in the balance sheet given in the question. अगर जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स लोन दिख रहा है तो ही उनका अकाउंट बनेगा, अदरवाइज ओनली 3 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. ठीक है. फोर्थ एंड फिफ्थ अकाउंट डिपेंड्स वेदर इट एग्जिस्ट. तो सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स, उसके बाद डील विथ द गिवन बैलेंस शीट. हमको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है हमको उससे डील करना है. This is the liabilities side of the balance sheet and assets side of the balance sheet. Look, on the liabilities side, you will have partners capital. Sometimes you will have partners current account also. कैपिटल तो होगा ही, अगर करंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कैपिटल नहीं है. Sometimes you will have partners loan. Then you may have general reserve or reserve fund और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ होगा. ठीक है. एंड अदर लाइबिलिटीज like just examples, creditors, bills payable, outstanding expenses, bank loan, etc. ठीक है. हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, दिस जस्ट एन लिस्ट एग्जांपल है. ऑन द एसेट साइड you may have cash and bank balance,
Sometimes on the asset side, you may see some partners' capital. Sometimes you may see some partners' current account. This is not common, ये rarely होता है. Then you may see profit and loss account on the asset side and other assets. Other assets like land, building, furniture, machinery, debtors, ठीक है ना, स्टॉक, चलो बहुत हो गया, एक्सेट्रा. So this is the balance sheet that is given to you. क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब आपको इसका करना क्या है? We have to deal with the balance sheet. बैलेंस शीट में ये जो भी चीजें हैं उनको इन 5 अकाउंट में से कहीं ना कहीं डालना है. रिमेंबर इजी ट्रिक्स. रूल नंबर 1, assets always go on the debit side, liabilities will go on the credit side. क्या बोला? Assets will always go on the debit side, liabilities will always go on the credit side. दूसरा चीज जो दिमाग में रखना है कि इन केस आपने उस चीज का अकाउंट बनाया है तो वो अपने अकाउंट में चला जाएगा एज ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती. I said assets always go on the debit side, liabilities will go on the credit side. सेकेंड चीज, जिस चीज का आपने अकाउंट बनाया है वो चीज अपने अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा एंड ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती. बाकी सब का एंट्री होगा, जर्नल एंट्री होगा. सो इन केस दे आस्क यू जर्नल, तो आपको याद रखना है जिनका ओपनिंग बैलेंस है उनका एंट्री नहीं होगा, बाकी सबका एंट्री होगा. लेट्स स्टार्ट विद द एसेट साइड. ओके, लायबिलिटी साइड, चलो ठीक है. पब्लिक डिमांड, लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल. क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो? चेक द लिस्ट, ऊपर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. यस, तो वहां ये ओपनिंग बैलेंस जाएगा, बराबर है. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है. लायबिलिटी है तो किस साइड जाएगा? लायबिलिटीज ऑलवेज गो ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड. नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट. क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले हो? आर यू गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट? यस. तो देयर यू विल शो दिस एज ओपनिंग बैलेंस अगेन. एंड लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड. पार्टनर्स लोन, क्या पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने वाले हो? Are you going to prepare partners loan account? Yes. So there you will show this as opening balance. Liability है तो opening balance किस side? Credit side. Now all these three will go in their respective accounts as opening balance. And opening balance है तो journal entry करना है कि नहीं करना है? ओपनिंग बैलेंस का जर्नल एंट्री होता है कि नहीं होता है? नहीं, तो नहीं करना है. ठीक है, नहीं होता, नहीं करना है. देन कम्स जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएनएल अकाउंट. नाउ लायबिलिटी साइड पर ये जो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, कोई आपको पूछे ये है क्या, ये है क्या, तो बोलने का ये पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स अभी तक आपस में बांटे नहीं है. अंडरस्टूड? तो अब बिजनेस बंद हो रहा है, अब तो बांट दो. ठीक है, अब तो बांट देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे. तो ये डाल दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट नहीं हुआ तो कैपिटल अकाउंट में. और लायबिलिटी है तो विच साइड? क्रेडिट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. करंट और कैपिटल अगर दोनों हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू करंट अकाउंट. करंट अकाउंट नहीं है तो ही कैपिटल में जाएगा. टेल मी, आर यू शोइंग दिस एज ओपनिंग बैलेंस? नो.
तो यू विल हैव जर्नल एंट्री, यस और नो? यस। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कॉमन सेंस गाइस, कॉमन सेंस, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है बताओ? पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट? तो आधा एंट्री तो यही हो गया, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या? डेबिट ये। तो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड और पीएनएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। तो अगर एंट्री पूछे तो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करंट और कैपिटल अकाउंट, बराबर कि नहीं? एंट्री तो अपने आप बन रही थी। Understood? Look, this is past undistributed profit, but now the business is getting close. So now तो we will have to distribute that profit ना, अब तो distribute करना ही पड़ेगा। तो ये पार्टनर्स को बांट देंगे कि गरीबों को बांटेंगे भाई? पार्टनर्स को बांटेंगे। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा या करंट अकाउंट में चला जाएगा। और लायबिलिटी है तो कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो आपको आधा एंट्री तो मालूम है, कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या? ये डेबिट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो डेबिट। अंडरस्टूड नाउ? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एंट्री कैसे बनाने का। Proceed. Next. We are not playing here. Next. Other liabilities. Now all other liabilities will be transferred to realization account. All other liabilities, creditors हो, bills payable हो, बैंक overdraft हो, बैंक loan हो, outstanding expense हो, all other liabilities will go to realization account. And liability किस तरफ जाता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट। अब आधा एंट्री तो बन गया, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो डेबिट क्या? ऑल द अदर लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरस्टूड द एंट्री? ऑल अदर लायबिलिटीज विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लायबिलिटी है तो क्रेडिट पे जाएगा, तो आधा एंट्री मालूम पड़ गया, रियलाइजेशन क्रेडिट। और रियलाइजेशन क्रेडिट तो क्या डेबिट? तो ये ऑल अदर लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, बैंक लोन डेबिट, ये सब डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नाउ कम टू द एसेट साइड। नाउ यू टेल मी, आर यू गोइंग टू प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट? Yes, so there you will show this as opening balance. Asset है तो किस तरफ opening balance भाई? Debit side. Journal entry, opening balance का journal entry नहीं होता है, so no entry for opening balance. Then partners capital. Are we going to prepare capital account of the partners? Yes. So there you will show this as opening balance. There you will show this as opening balance. और liability है तो सॉरी एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड?
डेबिट साइड, so opening balance on the debit side, and journal entry, तो as you know opening balance का journal entry नहीं होता. Then comes partners current account. क्या हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले हैं? यस. सो देयर यू विल शो दिस एज ओपनिंग बैलेंस. एसेट है तो विच साइड? डेबिट साइड. एंड ओपनिंग बैलेंस का जर्नल एंट्री नहीं होता. देन अगर एसेट पे पीएनएल अकाउंट दिखा तो इट रिप्रेजेंट्स पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. And since it is a loss, you will now have to distribute it to partners. तो ये पार्टनर्स को बांट दो. तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. एसेट है तो विच साइड? डेबिट साइड. अभी अभी आपने बोला पार्टनर्स के कैपिटल या करंट में डेबिट पे पहुंच जाएगा, तो एंट्री तो ऐसे ही बन गई, कैपिटल या करंट. फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी व्हाट? करंट अकाउंट. वो नहीं है तो कैपिटल डेबिट टू P&L अकाउंट. है कि नहीं? आधा एंट्री तो बन गया था. पार्टनर्स करंट या कैपिटल डेबिट, तो डेबिट तो मालूम है, क्रेडिट क्या? तो P&L अकाउंट. all other assets will go to realization account. अगर एसेट है तो विच साइड? डेबिट साइड. तो रियलाइजेशन डेबिट. तो लो आधा एंट्री तो आपने बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. टू क्या? टू ऑल अदर एसेट्स. ठीक है. नाउ अगर बैलेंस शीट में सपोज डेटर्स है 50,000 लेस आरडीडी 2,000, डेटर्स 50,000, आरडीडी लेस करके 2,000, आउटर कॉलम 48,000. तो रियलाइजेशन के डेबिट पे 48,000 जाएगा कि 50,000 जाएगा? सपोज ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड यू हैव डेटर्स 50,000 लेस आरडीडी 2,000, आउटर कॉलम 48,000. तो यू टेल मी रियलाइजेशन अकाउंट में जब डेटर ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या वैल्यू पे जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ यू आर रॉन्ग. और कोई तो मस्त आंसर दे रहा है. भाई सीधा बोल 50,000 या 48,000 बोल रहा है बुक वैल्यू. वाह. द आंसर इज रियलाइजेशन के डेबिट पे डेटर जाएगा 50,000. रियलाइजेशन के डेबिट पे 50,000 और आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट पे आएगा 2,000. तो अ सेपरेट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर आरडीडी and that will be realization debit. ऐसा, सॉरी, रियलाइजेशन क्रेडिट, आरडीडी डेबिट. डेटर्स को याद रहे ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में और आरडीडी सेपरेटली ऑपोजिट साइड पे डाल देते हैं. इज दैट फाइन? सो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसको कौन कौन सी चीज को कहां फेंकना है और उसमें से किसका जर्नल एंट्री होता है और किसका नहीं होता है. इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, ये सबका अकाउंट बन रहा है. तो वो अपने अपने अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बन रहा है. एसेट है तो डेबिट पे ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी है तो क्रेडिट पे ओपनिंग बैलेंस. एंड ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती, इसलिए मैंने वहां जर्नल एंट्री नहीं लिखा है. बराबर है? एंड आई वॉज वेरी क्लियर. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि कैपिटल और करंट अकाउंट अगर दोनों हुआ तो क्या करेंगे. आई वॉज वेरी क्लियर.
I was very clear. देखो, what someone is asking me is कि ये जनरल रिजर्व फंड इज पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब दे आर पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर कैपिटल और करंट दोनों हो तो पार्टनर्स को बांटते वक्त कौन से अकाउंट में डालने का? आई वाज वेरी क्लियर कि फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू व्हाट? क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस? कोणाला? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट नहीं है तो ही कैपिटल में जाएगा। इज दैट फाइन नाउ? डोक्यू तो हल्ला हो। फाइन। सो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड और पीएनएल अकाउंट रिप्रेजेंट्स पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स को बांटना है तो पार्टनर के करंट या कैपिटल में डाल देंगे। लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स करंट और कैपिटल में क्रेडिट, तो आधा एंट्री तो वही बन गया, पार्टनर्स कैपिटल और करंट क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या? तो ये जो आप बांट रहे हो वो डेबिट। all other liabilities will go to realization account and liabilities, so credit side तो realization credit, तो again आधा एंट्री मालूम है realization credit, तो डेबिट क्या? all these other liabilities debit। ठीक है, then come to the asset side, cash bank, partners capital and partners current, we are going to make their account, so there you will show this as opening balance and it is a asset, so opening balance on the debit side, and asset की journal entry नहीं होती। Then comes P&L account। अगर एसेट पे पीएनएल दिखा तो इट इज पास्ट का लॉसेस, पहले का लॉसेस है, तो वो अब पार्टनर्स को बांट देंगे, पार्टनर के करंट या कैपिटल में डाल देंगे। एसेट है तो कौन सी साइड डालेंगे? डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली करंट है, नहीं है तो कैपिटल, बट डेबिट बिकॉज एसेट है तो डेबिट। तो आधा एंट्री अगेन मालूम पड़ गया, पार्टनर्स करंट और कैपिटल डेबिट। टू क्या? तो टू पीएनएल अकाउंट, और क्या उसी को तो भेज रहे हैं हम। ऑल अदर एसेट्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट है तो डेबिट साइड, तो आधा एंट्री फिर मालूम पड़ गया, रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल अदर एसेट्स। अगर डेटर लेस आरडीडी है तो डेटर रियलाइजेशन के डेबिट पे जाएगा और आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट पे जाएगा, जिसकी एक सेपरेट एंट्री होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट है तो आरडीडी डेबिट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? फाइन। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया था उसका कौन सा चीज किधर जाएगा अच्छी तरह सबको मालूम पड़ा। आई एज्यूम दैट करेक्ट। अब क्या करने का? नाउ दे विल गिव मी इंफॉर्मेशन हाउ द एसेट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। एज यू नो, assets can be disposed of in three ways. Asset is sold. Now you tell me, नॉर्मली अगर अपन मशीन बेचते, फर्नीचर बेचते, तो पैसा आ रहा है, एसेट जा रहा है, तो पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट एंड एसेट जा रहा है गोज आउट क्रेडिट। नॉर्मली ये एंट्री होती है कि नहीं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, नॉर्मली दिस इज द एंट्री। द प्रॉब्लम इज कैश बैंक डेबिट, एसेट क्रेडिट में कैश बैंक तो मैं डेबिट कर दूंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट, बट एसेट क्रेडिट कैसे करूं? मैंने एसेट को तो अकाउंट ही नहीं बनाया है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नॉर्मल केस में व्हेनेवर एन एसेट इज सोल्ड, money is coming in, debit what comes in, and asset is going out, credit what goes out. So entry will be cash or bank account debit to asset account, normal. The problem is cash bank debit I can do because I am going to prepare cash bank account, but asset account credit how will I do? I am not preparing asset account. Now you tell me, all this furniture, machinery, land, building, ये जो हम बेच रहे हैं, ये सब assets को हमने कहाँ ट्रांसफर किया है? रियलाइजेशन के डेबिट पे। तो फिर ये एसेट
जो है वो कहां है अभी, रियलाइजेशन अकाउंट में. सो आई विल रिप्लेस इट विथ रियलाइजेशन अकाउंट. इज दिस क्लियर? एंड दिस एंट्री यू विल हैव टू डू एट सेलिंग प्राइस. जो प्राइस पे आपने बेचा उस प्राइस पे ये एंट्री करनी है. एसेट इज सोल्ड. सेकेंड, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. लोग नॉर्मली क्या होता है व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर? नॉर्मली क्या होता है बोलो? नॉर्मली अगर एसेट कोई पार्टनर लेके गया, नॉर्मली अगर बिजनेस बंद नहीं हुआ होता तो व्हाट एंट्री वी वुड हैव पास्ड? एसेट पार्टनर लेके जा रहा है तो एसेट इज गोइंग आउट, एसेट क्रेडिट होता. और जो पार्टनर एसेट लेके गया है हमको उसके पास से पैसा लेने का है. फ्री में थोड़ी देंगे उसको, तो हमको उससे लेने का है. तो ही बिकम्स डेटर, तो पार्टनर डेबिट होगा. व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर उसको डेबिट. यस और नो? नॉर्मली ये एंट्री होता है कि नहीं? जो एसेट लेके गया तो एसेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट. एंड जो पार्टनर लेके गया हमको उससे पैसा लेने का है, पार्टनर बिकम्स डेटर, तो उसको डेबिट. तो पार्टनर को डेबिट करेंगे. ऑब्वियसली अगेन करंट हुआ तो करंट विल बी फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं हुआ तो कैपिटल डेबिट टू एसेट अकाउंट. नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आई विल बी एबल टू डेबिट बिकॉज मैं वो अकाउंट बनाने वाला हूं. बट एसेट अकाउंट मैं नहीं बना रहा. बट एसेट कहां चला गया है? एसेट हैज गॉन टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन. तो आई विल रिप्लेस इट विथ रियलाइजेशन अकाउंट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट इज, अच्छा हाँ, बिफोर दैट, ये जो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है उसका अमाउंट क्या रहेगा एंट्री का? एग्रीड वैल्यू. जो वैल्यू आपस में पार्टनर डिसाइड करेंगे कि ठीक है तू ये भाव पे लेके जा घर पे, दैट वैल्यू. नाउ एसेट गिवन टू सेटल अ लायबिलिटी. लायबिलिटी सेटल करने के लिए मैंने उसको एसेट दे दिया. सपोज माय क्रेडिटर, ही केम फॉर पेमेंट. आई टोल्ड हिम मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, ये फर्नीचर है, ये तेरे को अच्छा लगा, तू ये लेके चला जा. तो I paid my liability not by giving money, but I paid my liability by giving that asset. तो asset is going out from me. Credit what goes out, तो asset credit. और अगर मैंने एसेट दे दिया उस क्रेडिटर को तो अब वो बंदा मेरा क्रेडिटर नहीं रहा. मैंने उसको पेमेंट के तौर पे एसेट दे दिया तो अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहा. सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट. तो वो लायबिलिटी को मुझे डेबिट करना पड़ेगा because he ceases to be my creditor. Liability है, I had to pay मतलब वो मेरा creditor था. And now I am paying him by giving him my asset. So he ceases to be my creditor, तो liability debit, and asset is going out, asset credit. But कहानी में twist है. I am not preparing liability account, I am not preparing asset account. These are the only accounts that I am going to prepare, 5 accounts. उसमें ना asset account है ना liability account. I hope you understand that, Atira. Now, where did I transfer liability? Where were the liabilities transferred? Realization account. And where were the assets transferred? Realization account. So liability कहाँ है? Realization. So I will replace liability with realization. Asset कहाँ है? Realization. So I will replace asset with realization. Now you tell me, realization debit to realization credit. ऐसा एंट्री होता है क्या कभी? ऐसा एंट्री होता है क्या कभी? सेम अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट? नहीं. तो नो एंट्री. So when asset is given to settle a liability, no entry. Is that clear, everyone? Now there are two very important notes that you should remember. Entry is same as above for unrecorded assets.
मतलब अगर कोई ऐसा एसेट बेचा जो बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं था हमने, या कोई ऐसा एसेट पार्टनर लेके गया जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड और अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, entry will still remain the same what I have shown here. Is that clear? Athira need to concentrate here. Is this not understood? So even if the asset is unrecorded asset, एक ऐसा asset है जो बैलेंस शीट में हमने दिखाया ही नहीं था, अगर ऐसा एसेट बेचा या ऐसा एसेट पार्टनर लेके गया तो भी एंट्रीज विल रिमेन द सेम. And another note, no entry is required for profit or loss on disposal of assets. If we have sold the asset, चुपचाप सेलिंग प्राइस पे ये एंट्री पास कर दो. सपोज ये एसेट बैलेंस शीट में दिख रहा था 50,000 एंड यू आर नाउ सेलिंग इट ओनली फॉर 40,000, तो चुपचाप सेलिंग प्राइस इज 40,000, 40,000 पे एंट्री यू विल पास. एंड वो जो 10,000 का लॉस हुआ, फॉरगेट इट. No entry is required for profit or loss on disposal of asset. Are you getting my point? So don't compare the selling price or don't compare this agreed value with the book value and say, अरे ये asset को dispose करके profit हुआ, loss हुआ. Forget it. Do not pass any entry for the profit or loss on disposal of asset. Is that clear? ये दो चीज बहुत याद रखनी है. No entry is required for profit or loss on disposal of asset. And another thing that you need to remember is entry will remain same whether the asset is a recorded asset or an unrecorded asset. ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत ध्यान देनी है. Now settlement of liabilities. Liabilities can be settled in three ways, out of which one way has already been discussed here. ऊपर आप देख लो, सेटल किया लायबिलिटी बाय गिविंग एसेट, उसका तो नो एंट्री था, ये देखो. Remaining two ways I will discuss here. One is liability paid. Now if you pay liability, आपको उसको पैसा देने का था, वो आपका क्रेडिटर था और आपने उसको पे कर दिया, तो अब वो आपका क्रेडिटर नहीं रहा, ceases to be creditor, इसलिए वो liability debit. When a person ceases to be creditor तो उसको डेबिट करते हैं. And we are paying the liability, तो cash is going out, credit what goes out. So my entry is liability account debit to cash bank. Now again, cash bank account we are going to prepare, but are we going to prepare liability account? No. तो अगर आप liability account नहीं prepare कर रहे हो तो liability को आपने कहां डाला था? Realization account में. तो you will replace liability with realization. Is that clear? Now liability is assumed by a partner. Now let's talk about the normal entry. We had to pay someone, so he was our creditor. Now one of my partner says कि चलो वो मैं देख लूंगा, I will pay. तो अब वो लायबिलिटी हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, ceases to be creditor, तो उसको डेबिट. I had to pay that liability ना, but now partner is going to pay, I don't have to pay. तो अब वो लायबिलिटी हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, ceases to be creditor, तो वो लायबिलिटी डेबिट. बराबर. एंड सेकेंडली, मैं अगर लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा, डोंट यू थिंक, एक मिनट, सिंपल बात है, देखो मेरी बात सुनो. मुझे किसी को पैसा चुकाना था और मेरे लिए अगर रितेश पैसा चुकाता है, मेरे लिए वो चुका रहा है, तो आपको नहीं लगता है मुझे रितेश को पैसा देना पड़ेगा?
मेरी एक लायबिलिटी थी जो आई हैड टू पे, और मेरे लिए रितेश इज पेइंग दैट, फॉर मी ही इज गोइंग टू पे, तो देन आई विल हैव टू पे रितेश. सेम वे हियर, अगर पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो मुझे पार्टनर को पैसा देने का है, पार्टनर बिकम्स क्रेडिटर तो उसको क्रेडिट. तो पार्टनर्स करंट और कैपिटल क्रेडिट, फर्स्ट प्रेफरेंस करंट. नाउ करंट और कैपिटल अकाउंट वी आर गोइंग टू मेक. आर वी गोइंग टू मेक लायबिलिटी अकाउंट? नो. तो लायबिलिटी अकाउंट वी कैनॉट यूज. वेयर हैव वी ट्रांसफर्ड लायबिलिटी? रियलाइजेशन अकाउंट. So we will write realization account. Now, first entry will be for the amount you have actually paid, and second entry will be at agreed value, कि भाई वो तू क्या वैल्यू पे वो लायबिलिटी लेके जा रहा है, पार्टनर. But again some important notes. Note number 1, entry is same as above for unrecorded liabilities. So even if we are paying a liability which was not recorded in the balance sheet, entry for liability paid is going to remain same. Same way, if a liability which was not shown in the balance sheet, वो कोई partner लेके चला गया, तो entry will still be this. So entries will not change even if it is unrecorded liability. And secondly, no entry is required for profit or loss on disposal of on settlement of liability. लायबिलिटी को थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ा या कम पे करना पड़ा सेटल करते वक्त, तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका अलग से एंट्री नहीं करना है. डू नॉट पास एंट्री फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. इज दैट क्लियर एवरीवन? Next is dissolution expenses, also known as realization expenses. Okay, paid by firm. फर्म ने पे किया, बिजनेस ने पे किया, तो व्हाट विल बी द एंट्री? बिजनेस का पैसा जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट, तो कैश बैंक क्रेडिट होएगा. डेबिट क्या करें? लो, कैश बैंक क्रेडिट हो गया. अब इन चार में से डेबिट क्या करें? पार्टनर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस पे कर रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल करंट या लोन तो डाल ही नहीं सकते. तो कॉमन सेंस क्या है? रियलाइजेशन. आर यू लिसनिंग? यस, वेरी गुड. So if the expenses are paid by the firm, फर्म का पैसा जा रहा है, goes out credit, and realization debit. But if it is paid by partner, बिजनेस के लिए पार्टनर पे कर रहा है, हमारे लिए अगर पार्टनर पे करेगा तो हमको उस पार्टनर को पैसा देने का है, हमारे लिए वो पे करेगा तो हमको उसको पैसा देने का है. देने का, ही बिकम्स क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट. And realization account debit. And if they say paid and borne by partner, तो नो एंट्री. मतलब पे भी पार्टनर करेगा एंड ही विल ओनली बेयर इट, वी विल नॉट बेयर इट. तू ही पे कर और तू ही भुगत, हम कुछ नहीं जानते, तो हम क्यों एंट्री करें भाई? अंडरस्टूड? सिक्स्थ,
सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन सपोज हमने पे कर दिया, तो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर पार्टनर का लोन पे कर दिया तो ही सीजेस टू बी माय क्रेडिटर, वी हैड टू पे हिम ना, तो ही वाज माय क्रेडिटर। और अब हमने पे कर दिया तो ही सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। जो भी अमाउंट पे किया उसका एंट्री करो। Is this entry clear? We are paying partner his loan amount. So money is going out, credit what goes out. And we are paying him, so he ceases to be our creditor, तो उसको debit. Sometimes partner's loan is assumed by partner. Partner इन शॉर्ट एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है, पार्टनर का लोन अकाउंट है ना, हम उसके कैपिटल के साथ मर्ज कर रहे हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो कैश नहीं पे कर रहा है, तो पार्टनर्स लोन डेबिट तो होएगा, बट टू कैश की जगह पर वी आर ट्रांसफरिंग टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। नाउ इंपॉर्टेंट नोट अगेन, टेल मी, पार्टनर के लोन को सेटल करते वक्त जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका अलग से एंट्री करना है कि नहीं करना है? यहां पर मैंने लिखा था कि लायबिलिटी को सेटल करके वक्त जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका एंट्री नहीं करना है। एसेट के वक्त भी मैंने बोला कि प्रॉफिट या लॉस होता है डिस्पोजल ऑफ एसेट, उसकी एंट्री नहीं करनी है। तो फिर पार्टनर का लोन सेटल करके जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका एंट्री करना है कि नहीं करना है? वेरी फ्यू हैव आंसर्ड। करना है, करना है। द डिफरेंस, क्योंकि ये ना अकाउंट अलग बनाया था पार्टनर्स लोन अकाउंट, द डिफरेंस इन पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, अगर है डिफरेंस तो, रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन and it is transferred to realization account। ठीक है, तो पार्टनर के लोन में सेटलमेंट के बाद कोई डिफरेंस दिखा तो दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेटलमेंट एंड दैट यू विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वंस दैट इज डन, पार्टनर्स लोन अकाउंट विल गेट क्लोज, बिकॉज उसका जो डिफरेंस था वो हमने रियलाइजेशन में भेज दिया। उसकी जर्नल एंट्री होगी या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की, ऑब्वियसली होगी, बट उससे पार्टनर्स लोन अकाउंट विल गेट क्लोज। तो सबसे पहले 5 में से कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ? पार्टनर्स लोन, और उसका डिफरेंस भेज दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्लोज हुआ पार्टनर्स लोन अकाउंट। नाउ यू विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। if realization account shows
क्रेडिट बैलेंस, द डिफरेंस इज प्रॉफिट या लॉस, चलो बोलो। क्रेडिट बैलेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट बोलेंगे या लॉस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट साइड इज मोर, एंड क्रेडिट साइड इज मोर, तो डिफरेंस विल बी ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड पर डिफरेंस है तो वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। देखो मैंने ये नहीं बोला कि डिफरेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, मैंने बोला डिफरेंस इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, बट अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस तो डेबिट पे दिखेगा, डिफरेंस डेबिट पे दिखेगा। सो क्रेडिट बैलेंस होता है तो डिफरेंस डेबिट पे दिखेगा, एंड दैट इज रियलाइजेशन प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है। डिफरेंस इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ना। व्हाट इज दिस? Difference is on the debit side of realization account. Now look here, what I am trying to tell you. Suppose this is realization account and it is showing credit balance. Credit balance means the total of the credit side is more. डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, तो फिर डिफरेंस कहां दिखेगा? डेबिट पे। और वो डिफरेंस इज प्रॉफिट। सो नाउ यू टेल मी, आपको ये प्रॉफिट कहां दिख रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे दिख रहा है या क्रेडिट पे दिख रहा है? डेबिट पे दिख रहा है ना, तो आधा एंट्री तो आपने बता दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट अभी बांट के किसको भेजे? पार्टनर्स को। तो टू पार्टनर्स, करंट हुआ तो करंट, नहीं हुआ तो कैपिटल। इज दिस अंडरस्टूड? जर्नल एंट्री। Realization is showing credit balance, credit is more than debit, so difference is here, this difference is profit. अब ये प्रॉफिट आपके सामने रियलाइजेशन के डेबिट पे दिख रहा है, तो एंट्री आधा तो आपको मालूम है, रियलाइजेशन डेबिट, टू प्रॉफिट किसको बांटेंगे? पार्टनर को। नाउ सेम वे, इफ realization account shows debit balance, debit is more, so difference will be on the credit side, the difference on the credit side is loss on realization. Hi Roop, I have not finished all my explanation, don't worry. Yeah? By realization account is a nominal account. Nominal account में debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. अगर क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम्स एंड गेन्स आर मोर, एंड इनकम्स ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होता है ना भाई। इज दैट ओके?
Now this time it is debit balance, means debit side is more and credit side is less. So the difference will be on the credit side और वो है loss. ठीक है, अब ये लॉस यू कैन सी वो आपको रियलाइजेशन में कौन से साइड दिख रहा है? क्रेडिट पे। तो एंट्री आधा तो आपको मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये लॉस आपको सामने ही दिख रहा है ना रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। तो रियलाइज क्रेडिट और ये लॉस किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। इज दैट ओके? यहां फिर एक नोट है, बिफोर क्लोजिंग realization account, check whether all liabilities have been settled or not. If any liability is not settled, first pay that liability and then close realization account. नहीं तो टैली होएगा, आप खुश होके निकलोगे एग्जाम से बाहर। आंसर रॉन्ग है। टैली फिर भी होएगा। मैनी अ टाइम्स वो लोग एडजस्टमेंट में जानबूझ के कोई एक पर्टिकुलर लायबिलिटी के बारे में कुछ बताते ही नहीं है कि वेदर वी हैव पेड दैट लायबिलिटी और व्हाट, कुछ नहीं बताया। तो बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट चेक कि ऑल लायबिलिटीज हैव बीन सेटल्ड और नॉट। अगर कोई लायबिलिटी इज पेंडिंग, फर्स्ट पे दैट लायबिलिटी। लायबिलिटी को पे करने का ये एंट्री करो, ये वाला लायबिलिटी पेड का एंट्री करो पहले, रियलाइजेशन टू कैश बैक, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, वरना आंसर टैली होगा फिर भी रॉन्ग है। अंडरस्टूड? मार्च 1993 महाराष्ट्र बोर्ड HSC 12th बोर्ड bookkeeping paper. I was a student. My entire paper was fantastic. पूरा पेपर जबरदस्त लिखा था। Everything, debit, credit, assets, liabilities, perfect. No single cancellation. Only one mistake I did. I forgot to pay the creditors. Nothing was mentioned in dissolution का question about creditors. तो exam pressure ना tension. I forgot to check it, and before checking it, I check out from the examination hall. पूरा perfect. I got 96 only. 4 marks deducted out of that 10-mark question. So don't do that mistake before closing realization.
तो बताओ अभी सबसे पहले ये 5 में से कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ, बोलो। विच अकाउंट गॉट क्लोज फर्स्ट? पार्टनर्स लोन सबसे पहले क्लोज हुआ, एंड इनकेस पार्टनर्स लोन में डिफरेंस था तो वो कहां डाले? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट। द थर्ड अकाउंट टू बी क्लोज इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड उसमें जो भी डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। पार्टनर के करंट अकाउंट को कैपिटल के साथ मर्ज करना है। तो यू विल नाउ क्लोज व्हाट? करंट अकाउंट, एंड व्हाटएवर इज द बैलेंस दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितना आया था बीके में? पहले बीके में 12 में कितना आया था? 98। No, Dimple ma'am is laughing here. When I said I made that mistake, so I got only 96. She is laughing because she did not make that mistake and she got 98. Close partners current account. If current account shows credit balance, बॉस क्रेडिट बैलेंस है तो डिफरेंस किधर दिखेगा बोल? क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट इज मोर, तो करंट अकाउंट में डिफरेंस किधर दिखेगा? डेबिट पे। मतलब करंट अकाउंट में डिफरेंस डेबिट पे है, करंट अकाउंट के डेबिट पे है, तो करंट अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर करना है उसको? कैपिटल अकाउंट में। एंड इफ करंट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड इज मोर तो डिफरेंस कहां दिखेगा करंट अकाउंट में? कहां दिखेगा? डेबिट इज मोर तो डिफरेंस क्रेडिट पे आएगा ना, तो करंट अकाउंट में डिफरेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो फिर डेबिट कहां होएगा? वी आर ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सॉरी। बस नाउ गिव मी 5 more minutes. Things are almost done now. क्रेडिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस है तो डिफरेंस इज ऑन द डेबिट साइड, एंड दैट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री हो जाएगा।
and if partners करंट अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस, डेबिट इज मोर, तो डिफरेंस करंट अकाउंट के क्रेडिट पे है, इसलिए एंट्री में पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया टू पार्टनर्स व्हाट कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो करंट अकाउंट क्लोज हो गया. नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. If capital account shows credit balance, partner is creditor of the firm and firm has to pay him. So pay him, पे करो उसको. लास्ट में अगर कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो आपका क्रेडिटर है, आपको उसको पे करना है तो आप उसको पे कर दो. अगर आप उसको पे कर रहे हो तो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड अगर आप उसको पे कर रहे हो तो अब वो आपका क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको डेबिट. ठीक है. एंड इफ कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, then he is our debtor. Partner is debtor of the firm and firm has to receive money from him. Receive it. उसके पास से पैसा लेने का, ले लो. तो पैसा आ रहा है, comes in debit. तो अगर उसने पैसे दे दिए तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, सीज टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट. ये डेबिट बैलेंस है मतलब वो डेटर है ना, हमको उससे पैसा लेने का है, ले लो. तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा तो उसको क्रेडिट. इज दैट फाइन? Everybody, is this fine? So the entire theory has been discussed again in detail. बराबर ना? Anyone has any doubts about it? पूरे में कहीं भी किसी को डाउट है? Fine then. चलो, see you next time. Bye bye.